स्टूडेंट देखिए, लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में डिस्कस किया था और रिटन डाउन वैल्यू मेथड की केवल मीनिंग हुई थी कल के लेक्चर में। आज इसकी मेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेरिट्स हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। देखिए, सम फॉलोइंग मेरिट्स आर गिवन बिलो ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। Number 1, easy calculation. This method is simple to understand and calculation of depreciation is easy because there is no need of fresh calculation. In case of there is an addition to the asset, unless such addition is made in the middle of the year. Number 2, equal charge against profit. Combined effect of depreciation and repairs on the profit and loss account is more or less uniform every year due to increasing amount of repairs but reducing the amount of depreciation, क्योंकि जैसे जैसे उसकी वैल्यू एसेट्स की कॉस्ट गिरती जाएगी उसी तरीके से उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा और डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट, नेवर जीरो वैल्यू। Since asset cannot be reduced to its zero value under this method, the physical presence of the asset at the end of its lifetime, even when it becomes useless, is fully justified by this method. लास्ट में स्टूडेंट आता है रिकॉग्निशन। This method is recognized by the under Income Tax Act 1961। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डीमेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सम डीमेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड आर एज फॉलोज। नंबर 1, नॉट completely written off. Since this method cannot be reduce the book value of an asset to zero, hence the determination of a suitable rate of depreciation is also difficult. The interest on account invested in asset is totally ignored. Managerial decisions regarding asset acquisition on a rational basis are thus rendered difficult. Number 3, difficulty in ascertaining the rate of depreciation. The determination of a suitable rate of depreciation is also difficult under this method as compared to the fixed installment method. Number 4, not up to date knowledge. Under this method, the original cost of various assets is not shown in the balance sheet. Sometimes the assets are grouped in such a way that it is difficult to ascertain their specific identify. Consequently, the residue of individual asset may continue to lie in the balance of the ledger asset account even long after the asset has been scrapped. Suitability or application of written down value method. देखिए, this method can very well be applied to plant and machinery where repairs are heavy
addition, extension, substitutions are quite frequent and where the asset need not to be reduced to zero. स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देखिए क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी 2009 ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹40,000। 40,000 रुपये की मशीन खरीदी एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 on its erection. On the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 16,000 rupees at the end of 10th year. It was provided the depreciation by the fixed installment method and to close books each year of 31st December. You are required to pass necessary journal entries for the first 3 years. 3 साल के लिए जनरल एंट्रीज रेडी करनी है, यानी 9, 10, 11 के लिए। एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, और जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं जैसे कि मशीनरी, डेप्रिसिएशन, ये भी 3 साल के बनाना होगा, यानी 2009, 10 एंड 11। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्टली हमारे डेप्रिसिएशन इसमें स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए कहीं भी इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए परचेज ए मशीन 40,000 दे रखी है और स्पेंड इस पर 2,000 रुपये इसने खर्च किए हैं और कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो 40,000 प्लस 2,000 यानी 42 और प्लस 4,000 यानी 46,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो देखिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी? 16,000 अपॉन कितने साल का है? 10th ईयर यानी 10 साल का अपॉन 10 ईयर्स। देखिए इसमें से ये माइनस किया 30,000 अपॉन 10 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आते हैं आपके 3,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट डेप्रिसिएशन के बाद ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ नहीं था। स्टूडेंट देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन में कितना डेप्रिसिएशन बैठ रहा है वो कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 3,000 रुपीज़ बैठ रहे थे, 3,000 रुपये। अब देखिए वो कह रहा है कि एक तो आपको जनरल बनाना है, तो जनरल डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, जो फॉर्मेट हमने शुरू में जनरल एंट्रीज का था वही सेम इसका फॉर्मेट है। देखिए 2009 इसका ईयर दे रखा है जनवरी 1। सबसे पहले क्या है, उन्होंने मशीन खरीदी है, यानी कि 40,000 की मशीन खरीदी है। 2,000 रुपीज़ उसके कैरिज के हैं
और 4,000 रुपये इसके रिएक्शन के। तो देखिए टोटल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 46,000 डेबिट में, 46,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग एसेट परचेज कैरिज एंड इरेक्शन चार्जेस। फिर 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। उस साल के 2009 के लास्ट में, 2009 के लास्ट में कितना डेप्रिसिएशन बैठता है? 3,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। फिर 31 दिसंबर को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट ईयर 2010 यानी 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि 2009, 10 एंड 11 के लिए। 2010 में 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब ये एंट्री नहीं होगी, अब डेप्रिसिएशन की होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग है। टू मशीनरी अकाउंट 3,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। फिर 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये भी 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट। स्टूडेंट फिर 2011 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू मशीनरी अकाउंट 3,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। पहले कैलकुलेट किया वही रहता है। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट देखिए आज इस लेक्चर में हमने इसकी जनरल एंट्रीज की। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेसेसरी अकाउंट रेडी करेंगे, जैसे कि आपके मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। थैंक यू स्टूडेंट।